Hello students, welcome you all in NEET Biology Boost Up series capsule number 3. So students, today I have taken one chapter and I will discuss with you most important points from the chapter which will be asked in NEET. So today we will take chapter number 2, biological classification. First of all, in a brief, I know that you have already studied that R.H. Whittaker in 1969 proposed 5 kingdom classification. So sometimes question may be asked, what are the characters or criteria on basis of which he divided the animals into 5 kingdoms. So you must recall them, that is cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization, and last on the basis of mode of nutrition. So students, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸੈਲ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ all unicellular prokaryotic organisms are placed under kingdom Monera. Then unicellular eukaryotic, they are placed under Protista. The Protista group ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਜਾਈ ਵਰਗੇ ਜੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ, ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ, ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ। ਤਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਆ, ਬਟ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ eukaryotes are placed under kingdom Protista. So students, question may be asked, ठीक है, कि though this protist or a phytoplankton, कोई desmids, ठीक है, कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਸੋਫਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ because it is a unicellular organism, so that's why it is placed under Protista, ठीक है। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਪਤਾ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, on the basis of which they are placed under a different kingdom. Same next plantae, they all are photosynthetic and prepare their own food, and also they all are multicellular, ठीक है। last animals, they are multicellular, ठीक है, heterotrophic organisms. Okay, so this was all about a brief summary of all 5 kingdoms. Next, what are the important words given in your NCERT, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ, ਜੋ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੇਨਲੀ ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨੇਰਾ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਐਂਡ ਫੰਜਾਈ ਆਰ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨ ਯੂਰ ਬੁੱਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨੇਰਾ ਫਸਟ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ। ਸੋ this can be ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸ਼ੇਪਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਬਰੀਓ, ਦੇ ਆਰ ਕੋਮਾ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਪਿਰੂਲਿਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪਾਇਰਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੈਸੀਲਸ, ਰॉड शेप structure, and last coccus type, ठीक है, they are spherical in shape. So these are groups, ठीक है, which are divided on basis of shape of bacteria. Next,
इन जनरल, ठीक है, जो बैक्टीरिया ने दे आर डिवाइडेड इनटू मेनली जो ਤੁਹਾਡੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ कैटेगरीज ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ 3 ਨੇ। नंबर 1 इज़ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट तुसी की लर्न करना, क्वेश्चन आया भी होए कि आर्की बैक्टीरिया तुहानू पता प्रिमिटिव बैक्टीरिया एंड दे कैन लिव इन मोस्ट जो हार्श कंडीशनस ने हैबिटेट्स ने, जिमें एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन जिन्हों आप हेलोफाइल्स कहने ने। हेलो मीनस सॉल्ट, फाइल मीनस लविंग। थर्मो एसिडोफाइल्स तुहाडे कोल प्रेजेंट ने जो हॉट स्प्रिंग्स च रहिंदे ने, आर्की बैक्टीरिया है जे ने। कई मिथेनोजेंस ने विच लिव इन मार्शी एरियाज एंड प्रोड्यूस also responsible for production of methane gas, that is biogas from the dung of animals. So different type of these bacteria can live under harsh habitat. What is behind them, ठीक है, जो इन्हां नूं सर्वाइव करवाउंदा वो है डिफरेंट सैल वॉल स्ट्रक्चर। ते क्वेश्चन भी आया होया कि आर्की बैक्टीरिया च जी की चीज़ प्रेजेंट है जिस दे करके ये इन्नियां हार्श जो हैबिटेट्स ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਰਸ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਟਰੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो ये भी क्वेश्चन आ जाता, कॉमन नेम तो ग्रुप से पूछे होंगे ने, तुसी उन्होंने मैच करके ऑप्शंस दसनिया होंदियां ने कि यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया और अदर ग्रुप्स। ठीक है, फाइकोमाइस्टिस फॉर एग्जाम्पल फंजाई के अंडर आप करांगे उन्होंने एल्गल फंजाई। तो इदा मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ जाते मिक्स होके, तो तुसी उन्होंने ठीक है करैक्ट मैच करके करैक्ट ऑप्शन दसनी होंदी है। तो यू बैक्टीरिया दे आर द ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंडर काफ़ी टाइप के जो बैक्टीरियाज ने ये अंदर रखे गए हैं। नंबर 1 इज़ साइनो बैक्टीरिया, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दिता गया, बट जो ट्रू एल्गी है ये भी एल्गी की टाइप है, इट इज़ अ यूनीसैलूलर एल्गी। ठीक है, तो जो मल्टी सैलूलर एल्गी है उन्होंने किंगडम प्लांटी के अंडर फस्ट जो उधर डिवीजन है किंगडम प्लांटी दी वो एल्गी ही है। ठीक है, वो डिफरेंट है नालों। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, इट हैज़ अ प्लांट लाइक करैक्टर्स। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी दियाँ जो कुछ टाइप्स ने जो अगे एग्जाम्पल्स ने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबीना। ठीक है, उन्हां च एक स्पैशल टाइप के सैल्स प्रेजेंट होंदे ने जिन्हां नूं कहा जाता हेट्रोसिस्ट। इंपॉर्टेंट है वर्ड हेट्रोसिस्ट। सो हेट्रोसिस्ट किस चीज़ हेल्प करते हैं, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ये। सैकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड जो साइनो बैक्टीरिया नाल रिलेटेड है वो है जिलैटिनस शीथ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆ, ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਾਇਰਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਲਸੋ ਫॉर्म ਬਲੂਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮ। ਤਾਂ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ठीक है, तो इन्हां च जो कवरिंग है इन्हां दी दैट इज़ स्मूथ कवरिंग कॉल्ड एज जिलैटिनस शीथ। तो तुसी याद रखना कि जिलैटिनस शीथ हेट्रोसिस्ट ये वर्ड यू बैक्टीरिया के अंडर साइनो बैक्टीरिया नाल रिलेटेड ने। ठीक है, तो हेट्रोसिस्ट का फंक्शन की है, दैट इज़ दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स। सो नेक्स्ट इज़ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया ने। ठीक है, दे ऑल्सो कम अंडर यू बैक्टीरिया। सो कीमोसिंथेटिक मीन्स दे यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया एटसैक्ट्रा फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की होंदी है
ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट, दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मेन एनर्जी मॉलिक्यूल प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ ऑर्गेनिजम्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, सो कीमोसिंथेटिक होने करके दीज बैक्टीरिया हैल्प इन रीसाइकलिंग ऑफ वेरीअस टाइप ऑफ न्यूट्रीएंट्स, जिमें सारे इधर आप एलीमेंट्स के नाम लिखे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर एटसैक्ट्रा, दे ऑल आर रीसाइकल्ड बाय दीज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट कैटेगरी अंडर यूबैक्टीरिया इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो हेट्रोट्रॉफिक, they are the most abundant and they are the important decomposers। ठीक है, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ। they are used in making curd, that is a heterotrophic bacteria। ठीक है, they can also be used for production of antibiotics, fixing nitrogen in legumes, and they can also be pathogens, disease causing bacteria, they also come under eubacteria category, that is heterotrophic bacteria। ठीक है, so diseases human beings ਦੇ ਵਿੱਚ cholera, typhoid, ठीक है, tetanus etc। ਤੇ next ਹੈ last category under bacteria, that is mycoplasmas। important ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇ ਲੈਕ ਸੈਲ ਵਾਲ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਲਸ ਨੋਨ, ਐਂਡ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦਾਊਟ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਲ ਨੋਨ, ਦੇ ਆਰ ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ। ठीक है, so this was important points regarding kingdom Monera। next we will start kingdom Protista। so kingdom Protista already ਆਪਾਂ डिस्कस कर लिया कि इस दे विच various types of organisms present ਹੁੰਦੇ ਨੇ। main जो common character है उन्हां च that is they all are unicellular eukaryotic organisms। they form link between plants and animals, क्योंकि ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट ने ते एनिमल लाइक भी। नंबर 1 जो ये डिवीजन है दैट इज क्राइसोफाइट्स। सो हुण आपां प्लांट लाइक करैक्टर्स तो एनिमल लाइक करैक्टर्स तक जावांगे इन किंगडम प्रोटिस्टा, जदों आपां 1 बाय 1 जो ये ग्रुप्स करने ने। सो क्राइसोफाइट इहदे च मेन वर्ड्स जो तुहानूं लर्न कर लेने, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਈਐਟਮਸ। ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਚੀਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇਨ ਓਸ਼ੀਅਨਸ। ਡਾਈਐਟਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਆਲ ਕ੍ਰਾਈਸੋਫਾਈਟਸ ਆਰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਡਾਈਐਟਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਕਸੀਜਨ, ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਡਾਈਐਟਮਸ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ, ठीक है, अपने को ऑर्गेनिज्म है, यूनीसैलुलर ऑर्गेनिज्म आ, बट जो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होंगे मिलियंस ऑफ, ठीक है, मिलियन बिलियंस इन्हां दी कलोनीज जां उत्थे प्रेजेंट ने ओशियनस दे विच, तां मैक्सीमम जो प्रोडक्शन ऑक्सीजन दी इन्हां तो हुंदी है। सो दे आर चीफ प्रोड्यूसरस इन ओशियनस। इहदे अंडर डायटम्स दे नाल ही इहदे अंडर आउंदे ने डेस्मिड्स। डेस्मिड्स द कॉमन नेम गोल्डन एल्गी। सो गोल्डन एल्गी इज अ प्रोटिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट और फाइंड बिलो गिवन आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज रॉन्ग और विच वन इज राइट। इस टाइप के क्वेश्चनस, ठीक है, नीट दे विच काफ़ी आउंदे ने। मैचिंग ते इदां दे क्वेश्चनस जो ट्रिकी क्वेश्चनस ने आउंदे, तो तुहानूं याद होना चाहिए दिस इज गोल्डन एल्गी डेस्मिड। ठीक है, एंड इट कम्स अंडर क्राइसोफाइट ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है क्राइसोफाइट्स से जो ऑर्गेनिजम्स ने, जो डायटम्स ने, देयर सैल वॉल फॉर्म ओवरलैपिंग शैल। शैल की फॉर्मेशन होंदी है जिन्हों नाम दिता गया सोप बॉक्स। ठीक है,
दे टुगैदर फिट इनटू, देखो डबल लेयर आ, डबल वॉल्स ने एक दूजे इदां फिट होंदे ने एज इन सोप बॉक्स, टू ओवरलैपिंग शैल्स, दे आर इंबैडिड विद सिलिका, उन्हां च सिलिका हुंदा, सो द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, हुण सिलिका उन्हां च हुंदा जिवें जिवें डाई एटम्स, ठीक है, खत्म हो रहे ने जां मन लो उन्हां दी डेथ हो रही है, ठीक है, दे लीव बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सैल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, तो जिथे वो रह रहे होंगे ने उत्थे बहुत सारिया जो सैल वॉल्स ने सिलिका जिन्ना चा वो इकट्ठी होंदी जाती है। ठीक है, तो बहुत सालों तक बिलियंस ऑफ ईयरस के प्रोसैस तो बाद इन्नी एक्यूमूलेशन उत्थे हो चुकी है। ठीक है, जिन्होंने नाम दिता गया डायटमेशियस अर्थ। ठीक है, जो डाई एटम्स तो बनी हुई है जो मिट्टी, दैट इज डायमेटेशियस अर्थ का नाम दिता गया। दिस वर्ड इज रिलेटेड विद क्राइसोफाइट्स एंड दिस जो सिलिका है जो डायटमेशियस अर्थ है, ठीक है, थोड़ी हार्ड होंगी है, गिट्टी। ठीक है, ईजीली इनू आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते एंड इट हैज़ मच इकनॉमिक इंपॉर्टेंस, इट इज़ यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स। ठीक है, सिरप्स, ये तुहाडी बुक दे विच अवेलेबल है, तुसीं इन्हां बारे नोट करना। ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नैक्सट है डाइनोफ्लैजिलेट्स। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स, they can be of different colors, they appear yellow, green, brown, red or blue. This is, ठीक है, जो कलर है that depends on the pigment present in their cells. The most जो important थोड़े बुक च एग्जाम्पल है that is Goniolax, it is a red dinoflagellate. ठीक है, and when present or when multiply rapidly they make the sea appear red. ठीक है, and so जो word आ ਉਹਦੇ ਲਈ है red tide. So red tide word is related with dinoflagellate. also जो गोनियोलैक्स है ਜਾਂ red tide जो प्रोड्यूस ਹੁੰਦੀ है, ठीक है, तो ਜਦੋਂ डाइनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होंगे ने, ठीक है, उन्होंने चो टॉक्सिन भी रिलीज होंगे ने, जो ज़्यादा अमाउंट तो ज़्यादा टॉक्सिक जो वो प्लेस आ, जो वाटर आ वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता। सो दे किल मैरीन एनीमल्स सच एज फिशिज। तो क्वेश्चन, ठीक है, तो आया भी होया कि जिथे बहुत ज़्यादा डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट ने, ठीक है, तो उत्थे फिशिज का रहना की है पॉसीबल नहीं है, फिशिज एबसेंट होंदियां ने, ट्रू स्टेटमेंट है ये। नैक्सट किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं यूगलीनॉइड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रेजेंस ऑफ पैलीकल। किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर यूगलीनॉइड्स इन बिटवीन आ जाता है ग्रुप। ठीक है, ऊपर आप दो जो ग्रुप्स करे ने बोथ वर फोटोसिंथेटिक, बट यूगलीनॉइड्स के अंडर they are photosynthetic in sunlight and heterotrophic in nature ਜਦੋਂ sunlight absent ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ plants ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ behave ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ sunlight present ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, they have pigments to prepare their food, but in absence of sunlight ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ nutrition ਹੁੰਦੀ ਹੈ heterotrophic ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, they depend on other, ਠੀਕ ਹੈ, organisms for their food. So in between plants and animals, so it is considered as connecting link between plants and animals. Next है slime molds. So इस तरह नाल आपां animal like characters वाल वध रहे हैं। These are saprophytic protists. ठीक है, this has fungi like character. तो जो अगलियां तीन किंगडम्स ने, किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी, किंगडम फंजाई। ठीक है, जे तुसी क्लासीफिकेशन का ट्री देखो 5 किंगडम क्लासीफिकेशन का, तो वो तीनों किंगडम्स किंगडम प्रोटिस्टा तो ओरिजिनेट होंगे ने। तो स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक ने, फंजाई लाइक। ठीक है, सैप्रोफिटिक मीन्स दे डिपेंड ऑन डिकेइंग लीव्स, ट्विग्स, ठीक है, फॉर टेकिंग न्यूट्रिशन, दे फीड ऑन दैट ऑर्गेनिक मैटर। नाउ under suitable conditions, important word है slime molds ਨਾਲ related बेटा, that is plasmodium। ध्यान नाल देखो वर्ड small p ਨਾਲ लिखा होया, क्योंकि
एक नेम है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट का, वो डिफरेंट है, ये प्लाज्मोडियम डिफरेंट है। दिस इज एन एग्रीगेशन ऑफ जो स्लाइम मोल्ड्स है, ठीक है, स्लाइम मोल्ड जो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस ये ग्रो करते हैं, उन्होंने जो एग्रीगेट है उन्होंने बोलिया जाता प्लाज्मोडियम, वो एग्रीगेट ही ग्रो करता, ठीक है, दैट ग्रोज एंड स्प्रैड ओवर सेवरल फीट एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन these form fruiting bodies। इस प्लाज्मोडियम के उत्ते स्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं which are extremely resistant and survive for many years। This is the important point related with slime molds। Now our last group in under kingdom Protista, that is protozoan, most simple, ठीक। ये अंडर फरदर मेजर जो ग्रुप्स ने प्रोटोजोन दे, देर आर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड नेम तो क्लियर है, अमीबा लाइक दे हैव सूडोपोडिया। फ्लैजिलेटेड they have flagella present on it, for example trypanosoma इतना लिखिया, this cause sleeping sickness। so sleeping sickness जो disease है that is related with trypanosoma। then ciliated they have cilia like paramecium, ठीक है। and last is sporozoans, that is malarial parasite plasmodium comes under it। so this plasmodium is different than, ठीक है, स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम। उत्थे जो स्मॉल पी नाल प्लाज्मोडियम से दैट वाज एन एग्रीगेट, इत्थे ऑर्गेनिज्म है एक अलग मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। सो प्रोटोजोन्स आर रिगार्डेड एज और कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव जो मैंबर्स ने ऑफ, और रिलेटिव्स आपां कह सकते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनीमल्स, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोन दे विच मेनली हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होंदी है। दे कैन बी प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। नेक्स्ट इज किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई च इंपॉर्टेंट वर्ड्स ने बेटा जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स के नाल, पक्सीनिया दिस कॉज वीट रस्ट, अस्टीलेगो कॉज लूज स्मट ऑफ वीट। तुसीं ये सब नोट करने ने, लर्न करने ने, तुहाडी NCERT दे विच एग्जाम्पल्स ने, सेम यही इहो जिहियां एग्जाम्पल्स ही तुहानूं क्वेश्चन भी आ सकदा। दैन कॉमन नेम ऑफ मशरूम इज अगैरिकस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पेंसिलियम इज अ टाइप ऑफ फंजाई विच एक्ट एज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। दैन ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, सिर्फ एक मैंबर है, दैट इज यीस्ट, इंपॉर्टेंट है। दैन राइजोपस, दिस इज ब्रेड मोल्ड, उन्होंने राइजोपस कहा जाता, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड फंजाई नाल रिलेटेड है लाइकन एंड माइकोराइजा, इंपॉर्टेंट ने। लाइकन एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई दी। माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो नोट डाउन करने हैं, लाइकन एंड माइकोराइजा आर बोथ एसोसिएटेड विद किंगडम फंजाई। लास्टली आपां जल्दी नाल, ठीक है, एक बार ओवर जो व्यू है ले लीए फंजाई का। फंजाई दे अंडर ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट ने, फाइकोमाइस्टिस दे आर कॉल्ड एज एल्गल फंजाई, एस्कोमाइस्टिस सैक फंजाई, बसीडियोमाइस्टिस ब्रैकेट फंजाई, एंड लास्ट डिटीरियोमाइस्टिस दे आर इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। इम्परफेक्ट फंजाई मीन्स no sexual reproduction or sexual phase is present under this group, so this is imperfect, ठीक है। then sexual reproduction जो फंजाई दे विच हुंदी है, उस 3 मेन स्टैप्स हुंदे ने। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वर्ड तो ही क्लीयर आ, प्रोटोप्लाज्म दी फ्यूजन। कैरियोगैमी, कैरियन वर्ड हुंदा न्यूक्लियाई लई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई दूसरा स्टैप है। थर्ड स्टैप है उस च मियोसिस होनी, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनने। मेन चीज़ याद रखनी तुसीं, फंजाई दे विच हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल
हमेशा हुंदा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दैन इंपॉर्टेंट वर्ड है डाईकैरियोफेज। कई फंजाई उन्हां च डाईकैरियोन दी फॉर्मेशन हुंदी है। डाईकैरियोन मीनस जदों साइटोप्लाज्म्स फ्यूज कर गए, ठीक है, प्लाज्मोगैमी हो गई, तो उस तो बाद उस सैल दे विच दो न्यूक्लियाई पए रहिंदे ने बिफोर कैरियोगैमी, ठीक है। वो न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करती इमीडिएटली, तो इन बिटवीन एक स्टेज आउंदी N+N दी, जिन्हों बोलते हैं डाईकैरियोन, ठीक है। डाईकैरियोन वर्ड क्लीयर होना चाहिए तुहानूं। एग्जाम्पल जो जिन्हां च डाईकैरियोफेज बनदा, दे आर एस्कोमाइस्टेज ग्रुप एंड बेसिडियोमाइस्टेज ग्रुप, ठीक है, दो एक ग्रुप प्रेजेंट ने। नैक्सट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फंजाई जिहदे बेस ते क्वेश्चन भी आया है नीट, कि सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। नैक्सट लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने वायरस नाल रिलेटेड, ठीक है। वायरस नाल मेन है जो दी हिस्टरी विनोम वर्ड है जिहड़ा वायरस लई फर्स्ट टाइम दिता पैस्चर ने। दैन इवानोवस्काई इन 1892, ठीक है, उन्हें डिस्कवर किया कि मोज़ेक डिजीज़ जो टोबैको दे विच है ਉਹਦੇ जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ दैट इज़ स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया नहीं कॉज कर रहा, कोई होर ऑर्गेनिज्म आ, बट उन्हें कोई नाम नहीं दिता। 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, वेजरेनिक ने उसे फ्लूइड नूं, उसे जो इन्फेक्टेड प्लांट से टोबैको का एक्सट्रैक्ट नूं नाम दिता कंटैजियम विवम फ्लूडम, ठीक है। दैन स्टैनले इन 1935 उन्हें वायरस क्रिस्टल्स नूं शो किया कि दैट इज़ मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दे आर ऑब्लीगेट पैरासाइट्स, मीनस दे आर एक्टिव ओनली वैन प्रेजेंट इनसाइड अ होस्ट, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दी बॉडी तो जो बाहर आ वायरस तो दे आर जस्ट नॉन लिविंग, ठीक है, दे आर ऑब्लीगेट होंदा टोटली डिपेंडेंट होना अपॉन अदर। नैक्सट इंपॉर्टेंट है जो वायरसिस दे अंडर तुसी याद रखना कि प्लांट वायरसिस ने जिहड़े हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हुंदा उन्हां दे अंदर, ठीक है। जो शायद +1 के स्टूडेंट्स ने उन्होंने ये टर्म्स ना क्लीयर होण, अगे तुहानूं चैप्टर्स दे विच आऊगा, ठीक है। +2 वालियां नूं क्लीयर होनी है टर्म कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सो प्लांट वायरसिस दे अंडर यह जे RNA प्रेजेंट होंदा। एनिमल वायरसिस के अंडर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड RNA में भी प्रेजेंट और डबल स्टैंडर्ड DNA, उहदे च कुछ भी हो सकता। एंड बैक्टीरियोफाजिस की होंदे ने, दोज वायरसिस विच अटैक बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया नूं खत्म करते हैं उन्होंने कहते हैं बैक्टीरियोफाजिस, उन्हां च हमेशा डबल स्टैंडर्ड DNA हुंदा। तो जो मस्ट वाली चीज़ है वो तुहानूं याद होनी चाहिए है कि ऑलवेज प्लांट वायरसिस कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड ऑलवेज बैक्टीरियोफाजिस कंटेन डबल स्टैंडर्ड DNA। लास्ट टर्म है विरॉइड्स, दिस वॉज गिवन बाय T.O. Diner 1971। तो इन्होंने साइंटिस्ट के नेम जो उन्होंने मैच करना परफेक्ट जो उन्होंने डिस्कवरी है तो तुसीं याद रखना। T.O. Diner ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ स्टडी किया and he found that is caused by a different organism other than virus and he called it viroid। that is viroid की होंदे ने, they are simple free RNA, इस च कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं होंदी, सिर्फ कला RNA होंदा। वायरस की है प्रोटीन प्लस RNA और DNA, ठीक है, प्रोटीन ते न्यूक्लिक एसिड आप टर्म दिने हैं, बट विरॉइड की ने दे आर जस्ट फ्री RNA, ठीक है। लास्ट कुछ क्वेश्चनस तुसी देख सकते हो, मेरे क्वेश्चनस नीट च आ सकते हैं, ठीक है, ਜਾਂ आए हुए ने तो हाँ जी। फर्स्ट जिमें प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यू ऑलरेडी नो मिथेनोजेंस, और विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। सो देखो इतने लिखे है ना, विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सारे करैक्टर्स आ गए वो। सो दैट इज माइकोप्लाज्मा। नैक्सट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई,
ठीक है कि फंजाइज की आ सो दिस इज रॉन्ग आपको पता दे आर यूकैरियोटिक दिस इज ट्रू दे आर हेट्रोट्रॉफिक दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ठीक है बट ऑल फंजाई पोजेस प्योरली सैलुलोजिक सेल वॉल दिस इज रॉन्ग ठीक है ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਕਾਈਟਨ ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ